कलीसिया जय मसीह की। Are you excited? क्या आप उत्सुक हैं? Today is Sunday. Are you excited? क्या आप उत्सुक हैं आज के संडे में? His presence is enough for me. His presence is enough for you. और उसकी उपस्थिति आपके और मेरे लिए काफी है। That's what I was experienced whole week. और यही मैंने हफ्ते भर महसूस किया है। Hallelujah. हालेलुया। I don't know what you are feeling. Oh my God, I'm so much tired. Oh, why she is preaching? I'm so much tired. और आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना थका हुआ क्यों, ये क्यों प्रचार कर रही, मैं इतना थका हुआ क्यों? आपको पता है, उसने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया क्योंकि वो हमसे बेहद प्यार करता है, और उसका प्यार, उसका प्रेजेंस हमारी हर एक थकान के ऊपर हमें उसके साथ चलने के लिए मदद करता है। And he gave his one and only son for us so that we could live a good life, and his presence enough for us so that we can live a life of refreshment, a life of Hallelujah. health. I don't know मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, but I am telling he is so good. और मुझे नहीं पता आज मैं कहाँ से शुरू करूं, बट मैं आपसे बताना चाहती हूँ वो बहुत भला परमेश्वर है और बहुत अच्छा परमेश्वर है। He is so good. I don't know from where to start, but I want to tell you that he is very good. He is mine good father. और वो मेरा भला पिता है। Yesterday we were in African fellowship. और कल हम लोग अफ्रीकन फेलोशिप में थे। It was amazing time. बहुत अच्छा समय था उनके साथ। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को प्रभु से रिसीव किए, एनकाउंटर्स को रिसीव किए, बहुत सारी टेस्टिमनी सुनी हमने। A lot of people received encounters from God, and a lot of testimonies were there. बट वहाँ पे भी मैं एक ही चीज कह रही थी कि उसकी प्रेजेंस हमारे लिए काफी है। And I was only seeing one more thing there, that His presence is enough for us. Why I'm sharing this? और मैं क्यों बांट रही हूँ आपको? Whole week, पूरा हफ्ता so many challenges was there, बहुत सारे challenges थे, but God's presence was enough, is enough, forever enough for me. और परमेश्वर की उपस्थिति पहले भी काफी थी और अभी भी काफी और आगे भी काफी रहेगी हमारे लिए। Hallelujah. हालेलुया। I'm telling you वो बहुत भला परमेश्वर मैं है। आपसे कह रही हूँ कि He is a good Father. कल भी I was not ready to go African fellowship में, I was not ready to go in African fellowship. You know, I was very tired. I was like, how, you know, Elijah will react, because he was so tired, and I'm like, what should I do? Should I go or not? You know, what should I do? Also, I'm a mother. I'm a pastor. What should I choose? And yesterday I was thinking about what to do, क्योंकि एलाइजा को भी देखना था और इधर भी देखना था, क्या करना चाहिए, कि मैं माँ भी हूँ और एक पास्टर भी। Yeah, but I'm telling you, जब हम उसको यस बोल देते हैं ना, उसके असाइनमेंट के पीछे पड़ जाते हैं ना, वो वायदे को पूरा करने वाला और स्ट्रेंथ को देने वाला परमेश्वर है। And when we say yes to Him and His assignment, He is the God who fulfills our promises and our needs. जरूर ये बहुत सारी चीजें बहुत समय मेरे लिए इजी नहीं होती हैं। And it might be that all these things are not, all these things become tough for me. Last week I'm sharing His goodness in my life. और पिछले हफ्ते मैं उसकी भलाई को आपके साथ में बांट रही थी। बट बताना चाहती हूँ अभी मैं उसकी गुडनेस को I want to tell you the goodness of God. So last week so many health issues was there. बहुत सारे health issues थे। I was thinking, should I visit hospital, or you know, should I go, or you know, many things was coming in my head. और बहुत कुछ मुस्कान सोच रही थी कि क्या उनको हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्या करना Or चाहिए, should I wait my maybe my husband will come, then I will go, you know. या उनका इंतजार करना चाहिए जब उनके हस्बैंड आएंगे तब वो जाएंगी। बट इन्होंने कहा कि यू नो, डिले मत करो, लेट मत करो, प्रॉब्लमेटिक चीजें हो जाएंगी ज्यादा लेट करने से, गो विजिट। And Pastor Joshua said, don't delay it, otherwise it might become more severe, so you should go, it's better. सो यू नो, बहुत सारी चीजें हुई, फीवर आया, बहुत वर्स्ट चीजें हुई, बहुत अनईजी हुआ, बट आई एम टेलिंग यू, इफ आई एम हियर हिज प्रेजेंस इज इनफ। And a lot of things happened, there was a lot of uneasiness, but मैं आपको कहना चाहती हूँ कि उसकी उपस्थिति आपके लिए काफी है। आज सुबह से आई वॉज नॉट वेल, बहुत फीवर था, किसी से नहीं बताया मैंने, बट मेरे को अनईजी लग रहा था। आई वॉज लाइक, आई डोंट नो, आई एम नॉट फीलिंग, वेयर इज माई बैक। आई मीन इतना बैक एक था कि किसी ने लिटरली 2 कर दिया वो पार्ट ना। आई वॉज फीलिंग, ओ माई गॉड, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद मी, आई वॉज वेरी वेरी टायर्ड। And Pastor Muskan was very tired, and वो सोच रही थी कि उनके पीठ में क्या चल रहा है, उनके पीठ में बहुत दर्द हो रहा था।
because of medicine, so many reactions, body ache, fever, so many things was there. और मेडिसिन के कारण बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे थे, बॉडी एक्स और फीवर हो रहे थे. सुनिए, आप ऐसा मत सोचिए ओ हो पास्टर मुस्कान इन चीजों से गई. नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बताना चाहती हूँ, His presence, His goodness is enough for me. His goodness is enough for you. और उसकी भलाई और उसकी उपस्थिति आपके लिए भी काफी और मेरे लिए भी काफी. Whole day I was like, I know, Father, whatever it's a hard situation, but I know you are my amazing Father. और हफ्ते भर मैं सोचा कि भले बहुत कुछ चल रहा है, बहुत मुश्किल चीजें चल रही हैं, पर मैं जानती हूँ तू मेरा अद्भुत पिता है. सुबह से लेकर अलाइजा was not well, वो बहुत क्रैंकी हो रहा है. He wants mama and mama and mama and I was not well. I am like, I want my father, my father, my father. And from the morning Elijah was very cranky and he was always wanting her mom, and Pastor Muskan was like she wants her father, the heavenly father. आपको बताना चाहती हूँ कि प्यार ना हमेशा एक तरफा नहीं होता है. या भाई, And love is always not one-sided. कोई कितने लोग प्यार किए हैं कभी? How many of you have loved someone? कितने लोग शादीशुदा हैं? How many of you are married? कितने लोग मम्मी पापा से प्यार किए How हैं? many of you love your parents? कितने लोग प्यार को एक्सपीरियंस किए हैं? How many of you have experienced the love? पिछले हफ्ता कितने लोग लव के मैसेज में यहाँ पर थे? How many of you were here for hearing the message of love? आई एम सो मच अमेज्ड. मैंने बहुत सारे लोगों की टेस्टिमनी सुनी एंड आई नो पिछले हफ्ते लव के मैसेज ने कलीसिया में बहुत कुछ खोला है, लव एनकाउंटर्स को खोला है. And I believe God has opened, I heard a lot of testimonies and God has opened a lot of love encounters in the church. सो कितने लोग जानते हैं लव दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता? How many of you know that love is two-sided, not one-sided? पता है आपको, you एक know तरफा प्यार ज्यादा लंबा नहीं चल पाता है. And one-sided love does not go long. समटाइम्स लाइक यू नो, ऐसा देखिए कि कई बार यू नो फीलिंग्स में प्यार हो गया एंड देन बिकॉज एक तरफा प्यार है, हम ही दिए जा रहे हैं, हम ही दिए जा रहे हैं, हम ही दिए जा रहे हैं, एंड एकदम से ना पता नहीं कब ब्रेकअप हो जाता है, कब चीजें समझ नहीं आती और प्यार नहीं रहता फिर वो. There have been times that you might have felt that you got into a loving relationship and then you were the one only giving and giving and giving, and then you understood that this was never a two-sided love. This was only you putting in efforts, and Yeah. then at the end you break up. So my heavenly Father is really very amazing. He gave his own son. John 3:16 says, और मेरा स्वर्गीय पिता बहुत ही अद्भुत है क्योंकि उसने अपना पुत्र दे दिया. यूहन्ना 3:16 कहता है, उसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए दे दिया है. and he gave his only begotten son for me. क्योंकि वो मुझसे और हर एक जाति से और हर एक से प्यार करता है. Because he loves me and he loves every nation and every tribe. So why I am sharing my part, this week was very hard, many things was there, but his love, his presence was enough. और मैं ये क्यों बांट रही हूँ कि ये पूरा हफ्ता मेरा इतना ऐसा गया, पर उसकी उपस्थिति और उसका प्रेम काफी था मेरे लिए. क्योंकि हमेशा ना आप देखिए गॉड के साथ भी ही इज अमेजिंग फादर, उसका लव हमेशा हमारे लिए है, पर कभी भी प्यार एक तरफा नहीं चल सकता. इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग ओनली रिसीविंग, आई एम टेलिंग यू गिविंग को भी अभी मैं आगे बताती हूँ आपको. And love cannot go one way for a longer time. अगर आप सिर्फ लेते रहते और देते नहीं है, लंबा नहीं जाएगा. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि यीशु बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो हमारे लिए क्रूस पे चढ़ गया ताकि हम उसके प्यार को जाने. And Jesus loves us so much, that is why he went on the cross for us, so that we can know his love. So हमको कई बार जानना है कि we are just receiving, what should I do? You know, मैं उसके साथ प्यार में चलने के लिए कैसे और पार्टनर कर सकती हूँ ताकि मैं उसके साथ और इंटीमेसी में बढ़ूँ. And we learned last week that we have to receive the love of the Father, but how can we walk with God so that we can go in deeper intimacy with him? और अभी हम सीखेंगे कि हम कैसा अपना बेहतर दे सकते हैं कि हम उसके साथ इंटीमेसी में बढ़ सकें. And we will learn how can we give our best or our better to him. Hallelujah. Hallelujah. Are you excited? क्या आप excited हैं? So let's read Matthew 22:37 to 39. और हम पढ़ेंगे मत्ती 22 उसका 27 से लेकर 37 से लेके 39. 37 से लेकर 39 तक. आप लोग कोई भी हिंदी में इंग्लिश में जोर से पढ़िए जल्दी से. Anyone can read it in English or Hindi.
या किसी को भी मिल गया हो तो हाँ, मत्ती 22 का 37 से 39. Matthew 22 from 37 to 39. Yes. Love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. This is the first and most important command. And the second command is like the first. Love your neighbor the same as you love yourself. हालेलुया. वचन कहता है कि तुम अपने प्रभु से पूरे मन, पूरे प्राण और पूरी शक्ति से, आई थिंक सोल, हार्ट एंड माइंड, पूरे मन से, पूरे हृदय से और पूरे प्राण से उस परमेश्वर से प्यार करना, ये पहली आज्ञा प्रभु ने हमें दी है. And this is the first commandment that the Lord gave us. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So John 3:16 कहता है कि उसने मेरे लिए अपने पुत्र को दे दिया क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है. And John 3:16 says that He gave His Son for us so that because He loves me. बट यीशु मसीह ने एक कमांडमेंट दी है. यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी है. यीशु मसीह ने ये हमें पहली आज्ञा दी है कि अपने नेबर से, अपने पड़ोसी से प्यार करो. और यीशु मसीह ने कहा कि तुम परमेश्वर से भी पूरे मन, पूरी बुद्धि, पूरे प्राण से प्यार करो. And Jesus said that to His neighbor, Jesus said that love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and all your mind, and then to your love to your neighbor as well. So it's not about receiving from the Father only. और ये सिर्फ ग्रहण करना नहीं है पिता से. दिस इज वेरी बिग रेवलेशन. आप बने रहिएगा. अगर आप सो रहे हैं, कहीं आपका दिमाग घर में है, कुछ और है, आई एम सॉरी, आप यहाँ पे रह के भी यहाँ पर नहीं है, तो आप कुछ आज मिस कर देंगे. And you might miss something if your mind is somewhere else. आज मैं बहुत खुश हूँ अगर कलीसिया में 3 लोग भी अगर इस चीज को लेके जाएंगे. आई एम सेइंग 2 लोग भी लेकर जाएंगे. आई नो कि आप फ्रूटफुलनेस को देखेंगे अपने सीजन में. And you will see a fruitfulness in your season. क्योंकि मुझे पता है मैंने जो रेवलेशन रिसीव किया है वो मैं प्रैक्टिस करती हूँ और मैं देख रही हूँ अपने लाइफ में. और जब मैं दे रही हूँ, आई नो कि प्रभु यहाँ पर कुछ खोल रहा है. And I know God is opening something because I have practiced this revelation. God is going to open up something. So, जब प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए दिया ताकि मैं उसके प्यार को जानूं, तो उसने ये आज्ञा भी दी है कि मैं फिर उसको रिसीव करके उस प्यार को यीशु मसीह को भी करूं और पड़ोसी को भी उस प्यार को दूं. And God gave this commandment that I love the Lord with all your heart, and to receive that love and then share it with my neighbors. So it's about receiving and giving. और ये लेने और देने के बारे में है. So आप लोग समझ पा रहे हैं? Are you with me here? ठीक है, एक तरफा नहीं है. देना भी है तो लेना भी. आई लव यू सुनना भी है तो आई लव यू टू भी बोलना है. And it's not a one-way thing. You have to receive and you have to give as well. Some people are like always like, Father, please love me. I want to receive your love. Please give your love. And कई बार ऐसा होता है कि पिता से आप कहते हैं कि पिता मेरे को प्रेम आपका ग्रहण करना है, मेरे को प्यार करिए. ठीक है, ये करना है हमें. उसके प्यार से ही हम दूसरों को प्यार कर From सकते His हैं. love we can love others. बट प्रभु ने ये आज्ञा दिया है कि हमको अपने पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि से अपने गॉड से, अपने परमेश्वर को भी प्यार करना है. And but the Bible says that God has said that love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So soul, mind, heart, it's very big revelation. एक बार मैंने कहीं ये प्रीच किया था, बट अभी टाइम नहीं है. तो माइंड में बहुत सारी चीजें हैं, प्राण में बहुत सारी चीजें हैं, हार्ट में बहुत सारी चीजें हैं. बट इस छोटी सी चीज में मैं आपको लेके जाती हूँ. लव इज नॉट अ फीलिंग, इट्स अ चॉइस. और प्रेम एक भावना नहीं है, पर ये एक चुनाव है. और आप चूज करते हो कि मुझे उसके साथ रहना है, इसलिए मैं उसकी बातों को सुनूंगा. And you choose that you want to live with Him, and that is why you want to hear Him. एंड ऑल्सो कई बार जब आप रिश्ते में हो ना, मैं ना आपको रिलेशनशिप बता रही हूँ, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा. कई बार मैं और पास्टर जोशवा जब एक साथ रहते हैं, कई सारी चीजें करते हैं, तो पास्टर जोशवा ने मुझे बोला कि मुस्कान ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए. And when Pastor Muskan and Pastor Joshua lived together, there are some considerations that they make that this should not happen and this should happen. So क्योंकि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम एक दूसरे को खुश कर सके. Because they love each other, they want to please each other. ठीक है, तो अगर पास्टर जोशवा ने मुझे बोला कि मुस्कान ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए, आप ऐसा करिएगा. And if Pastor Joshua said this should not happen, this should happen. So because क्योंकि मैं अपने पति से प्यार करती हूँ, मेरा काम है मैं उनको ओबे करूंगी, उनको ऑनर करूंगी. And because she loves her husband, she will love and honor him. So कई बार उनकी बातों को सुनना मेरा एक्ट है कि मैं उनकी आज्ञा को मानूं
ताकि उनको दिखा सकूं कि मैं उनसे प्यार करती हूँ. So, obeying him is an act to show him that I love him and I want to obey him. So, अगर आप पिता के साथ भी कमांडमेंट लिखा है ना, मेरी आज्ञाओं को मानो, मैथ्यू 22:37 to 39. And Matthew chapter 22, 37 to 39, it says, obey my commandments. तो अगर आप पिता के साथ प्यार में हो ना, तो रिसीविंग गिविंग दोनों चलेगी. And if you are in love with the Father, you will also receive and you will also give. और आप ना उसका कहना मानोगे And you will obey him और आप फियर ऑफ गॉड में चलोगे. and you will walk in the fear of God. फियर ऑफ गॉड का रेवलेशन मैं आपको दे रही हूँ. Come on. I want to give the revelation of the fear of God. एक से मैं पिछले हफ्ते काउंसलिंग में थी, आउट ऑफ नोवेयर फियर ऑफ गॉड पे बातों बातों में मेरे को रेवलेशन मिल गया. आई एम लाइक ये चीज तो मैं चर्च में दूंगी. And I received a revelation talking about the fear of God and I want to share that revelation to you. सो फियर ऑफ गॉड कैसा दिखता है आप लोगों को? How कोई does भी the fear of God look to you? कोई भी यहाँ पे क्राउड में बस 2 जन. परमेश्वर का भय आपको कैसा दिखता है? परमेश्वर का भय आपको कैसा दिखता है? How does the fear of कोई God भी look कोई to भी you? मुझे खड़ा होके आप बता सकते हैं. How does the fear of God look to you? ओके नहीं, परमेश्वर का कोई भी और भी परमेश्वर का भय को आप पर्सनली कैसे लेते हो कि मुझे प्रभु से डरना है? How do you take the fear of God as? पावरफुल, वेरी गुड. और कोई यस. ओके आप हिंदी में भी इसको बोलो. फेवर बहन ने कहा कि उसकी उपस्थिति के लिए जागरूक रहना और उसकी उपस्थिति को आदर देना. फॉर मी, पास्टर मुस्कान के लिए मेरे लिए ऐसा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये ना ट्रिप में जा रहे थे, पास्टर जोशुआ वाज गोइंग ऑन अ ट्रिप. तो फोन पे ही इन्होंने मुझे एक चीज ऐसे बोल दी थी कि मुस्कान ये ऐसा है तो आप ऐसा करिएगा. And Pastor Joshua said that this is there, so Pastor Muskan, you have to do this. सो चलो थोड़ा सा ओपनली बोलती हूँ. हम लोग ऊपर वाली फ्लोर में रहते, नीचे वाले फ्लोर के भी कुछ समय से पास्टर भी नहीं थे. तो ही वॉज केयरिंग कि ध्यान रख रहे थे काइंड ऑफ. ही वॉज लाइक मुस्कान डोर वोर क्लोज रखना, मिनाल में ये चीजें न्यूज में सुनाई दे रही हैं, सो थोड़ा ध्यान रखना, लॉक लगा के रखना. एंड आई एम लाइक मुझे डर नहीं लगता है किसी से, बट इनसाइड ये था कि अगर ये बोल रहे हैं तो मुझे बस सुनना है, क्वेश्चन नहीं करना है. And Pastor Joshua was saying that there are some things happening in the Minal residency colony, and so be careful, close and lock the door, bolt the door from inside. But Pastor Muskan was like, I don't fear, but I will just obey. सो कई बार दूसरे दिन तीसरे दिन कई बार ऐसा लगा कि यार ऊपर नीचे कौन करे, एलाइजा बहुत परेशान कर रहा है. बट इन माय हार्ट बस एक कॉल वाली बात याद आती थी, इन्होंने बोला है, पास्टर जोशुआ ने बोला है, मुझे करना है. And inside Pastor Muskan's heart, she would feel like, what should we do? Elijah wants to go here and there, but she knew that Pastor Joshua had said something. तो it's not only one thing, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. सिर्फ एक चीज नहीं है, और there's a lot of things. तो मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ? मैं पर्सनली ऐसा फियर ऑफ गॉड देखती हूँ कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल पास्टर जोशुआ का बात नहीं सुन रही हूँ तो मेरे को ये लगेगा कि मैं ना इनको खुश कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ. इट्स ऑल अबाउट कि मैं ऐसा देखूं कि मैं इनकी बात सुन के इनसे डर नहीं रही हूँ, लेकिन मेरा इनका मानना, मैं इनको प्रसन्न कर रही हूँ, खुश कर रही हूँ. And it's not fear of God does not look like I am fearing someone, but it actually looks like I am obeying someone. I am loving someone. Loving someone. ठीक है. It's like someone say, oh, what should I say? कोई ये सुन के ऐसा बोलेगा कि तुम पास्टर जोशुआ से डरती हो इसलिए ऐसा कर रही हो. बट आई एम सेइंग मैं क्योंकि उनसे प्यार करती हूँ इसलिए उनको सुनना चाहती हूँ ताकि उनको बुरा न लगे. And because Pastor Muskan loves Pastor Joshua, that is why she wants to care him so that he does not feel unheard. सुनिएगा, अगर आप प्रभु के साथ भी फियर ऑफ गॉड ऐसा देखते हैं ना कि अगर उसने मुझे कुछ बोला है मुझे करना है क्योंकि मेरे प्रेमी को बुरा न लग जाए. And if you see the fear of God like this, that if he has said something, I want to do it, or else he will feel sad. So, मेरे लिए ये ऐसा दिखता है कि मैं क्योंकि उसको प्यार करती हूँ इसलिए मुझे करना है. इट्स नॉट अबाउट फियर, इट्स अबाउट क्योंकि मैं प्यार करती हूँ मुझे तो सुनना है ना. And it's ये डर की बात में नहीं है, पर because I love God, I want to do that. हालेलुया. Hallelujah. So love हमेशा टू साइडेड होता है. और प्रेम हमेशा दो
टू साइड, दो तरफा होता है. तो अगर आप रिसीव कर रहे हैं पिता से, तो ये जानिए कि आपका कई बार फर्ज बनता है कि आप पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि से उस परमेश्वर को प्यार करें और उसके भय में चलें. And if you want to love the Lord, you have to love Him with all your soul, all your heart, and all your mind. हालेलुया. Walk in His fear. लव पिछली बार बहुत ओपनली मैंने बता दिया 1 Corinthians 13 से, बट आज मैं आपको बताना चाहती हूँ लव इज अ लिविंग थिंग. और I want to tell you today that love, प्रेम एक जीवित चीज है. लव इज अ लिविंग थिंग. प्रेम एक जीवित चीज है. इट हैज टू हैव अ फ्लो. और उसका एक बहाव होता है. लव इज अ लिविंग थिंग. प्रेम एक जीवित सबको चीज प्यार है. चाहिए कि नहीं चाहिए? Does everybody need कोई love? एक यहाँ पे ऐसा है बोले मुझे तो प्यार नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही चल लूंगी. And is there anyone who can say that I don't need love, I can walk without आप love? ना बड़े सीरियस बैठे हो चर्च. You are a lot serious church today. पिछली बार भी मैंने अलाइजा की स्टोरी से आपको हंसा दिया था, मम्मा पापा. And I made you laugh with the Elijah story yesterday. तो मैं और भी स्टोरीज आपको बताऊंगी, बट आई एम टेलिंग यू लव इज अ लिविंग थिंग. And मैं वो कह रही हूँ प्रेम एक जीवित चीज है. अगर आप यहाँ पर हर दिन आ रहे हैं, जी रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, हर एक इंसान को प्यार चाहिए And everybody needs love. और उसका एक फ्लो होना चाहिए. And there should be a flow. सो मेरे साथ ये विजुअलाइज करिए. And I want you to visualize this with me. So the river is clean because water comes in, water comes out. और एक नदी तभी साफ रह पाती है जब पानी अंदर और बाहर जाता है. But why is the Dead Sea is dead? और पर ऐसा क्यों होता है कि जो या नाला बोल सकते हैं उसको, या why is still water? या और जो रुका हुआ पानी रहता है वो क्यों मरा रहता है? या आई मीन मुझे नहीं पता इसको इंग्लिश से हिंदी कैसे करें, बट जहाँ पर बहाव नहीं है ना वहाँ पर पानी अच्छा नहीं है, बट जहाँ पर नदी में पानी बहता जाता है ना, हम वहाँ पे बिकॉज अच्छा फ्लो है तो कई बार लोग कपड़े भी धोते हैं, चीजें करते हैं, फ्लो. And where there's no flow, the water over there gets contaminated. Yeah, but where stagnant. there's flow, whatever you do, because the water keeps flowing, it is clean. तो जो डेड सी है काइंड ऑफ उसमें इनलेट भी नहीं है, आउटलेट भी नहीं है ना. And the still water does not have any inlet or any outlet. मतलब उसका आना भी नहीं हो रहा है, जाना भी नहीं हो रहा है, वो स्टिल वाटर है And बस. the water is not flowing, it is still water. सो लव जो है ना, रिसीविंग और गिविंग दोनों रोल प्ले करता है. And love has a role of receiving and giving both. देना और लेना दोनों प्यार में मौजूद है. And giving and receiving is both of them are found in love. सो इट्स लाइक वो ऐसा है. जैसे कि लव लैंग्वेज के बारे में बताऊंगी तो बहुत सारी चीजें हैं, There's a बट lot of things about love language. सो आई एम काइंड ऑफ पर्सन ना, मुझे कई बार मैंने देखा कि मेरे को गिफ्ट्स देना जिसको मैं लव करती हूँ बहुत पसंद है, कि मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ कि क्या चीज का जरूरत है, और मैं गिफ्ट्स देना बहुत पसंद है, लाइक कि मैं इनको खुश कर सकूं. And Pastor Muskan loves to give gifts to people that she loves, because whenever she sees a need, she wants to give that gift. Yeah, so I am kind of, every time I am like, how should I do this, so someone feel, special. और मैं हर बार ये सोचती हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ ताकि कोई और खास महसूस करे. So हर बारी ना मेरे को गिफ्ट्स देना बड़ा मजा आता है. And I love to give gifts every time. बट कई बार ऐसा भी होता है कि मैं देने के बाद रिसीविंग जोन में चली जाती हूँ. And a lot of times I have given, now I want to receive love So as कई well. बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को नहीं मिल रहा है ना, तो मुझे अजीब सा लग रहा है, या फिर मेरे को सीन फील नहीं हो रहा है. And if I am, sometimes it happens if I'm not able to receive love, I do not feel seen. If I am not receiving gifts, so I'm not receiving gifts. I feel like I'm not receiving the love. sometimes it's like I am giving and giving and giving and giving. और कई बार ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ दे रही हूँ. तो कई बार मुझे लगता है मुझे भी स्पेशल फील नहीं हो रहा है, मुझे भी कोई गिफ्ट देना. And sometimes I feel like I'm not feeling special because somebody is not giving me gifts. So in my marriage story, many times I was like, okay, I was a giver. और पास मुस्कान की शादी की कहानी में हमेशा उन्हें देने वाली रही है. गिवर गिफ्ट्स देने वाली के रही, बारे gift देने में. वाली. या सो कई बार मुझे ऐसा लगता था बिकॉज माई हस्बैंड इज नॉट गुड इन गिफ्ट्स एंड एवरीथिंग. ही इज वेरी गुड इन एवरीथिंग, बट आई थिंक ही इज नॉट वेरी concerned about what should I do, And Pastor Joshua, what should I give. Pastor Joshua is not good in giving gifts. Other than that, he is good in everything. Yeah, so in starting I was like only I am giving. और एक दिन मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरे को गिफ्ट नहीं मिल रहा है तो मुझे स्पेशल फील नहीं हो रहा है. And
Pastor Muskan was only giving gifts, and because she was not receiving any gifts, she did not feel special. I'm just sharing my part, okay? Maybe आपका कुछ और part होगा. You might have a different part. but she's Just sharing. एक example दे रही हूँ कि क्या giving और receiving एक काम करता है life And में. what does giving and receiving does in life, and she's sharing. So जब मैं give करने लगी थी तो मेरा heart क्या बोल रहा था, मुझे अब receive करना है. And when she gave, she was thinking, where will I receive? So मैं vulnerable होकर बोली. So she said to Pastor Joshua, So then इनको समझ आया, इन्होंने कई बार मेरे को बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं और देते रहते हैं. And Now it's both side. and he understood, and Pastor Joshua started giving gifts, and now gifts are exchanged both of the sides. So मैं ये शेयर क्यों कर रही हूँ? जब एक तरफा होंगी चीजें ना, तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे. आपको सीन फील नहीं होगा. दोनों साइड लव मिलता है और आप देते हो ना, तो आपको कंफर्टेबल और सीन लगता है. And when you only receive but you do not give, it will be a one-sided thing. But when you keep giving and keep receiving, you start feeling loved and cared for. थोड़ा सा आगे मैं डीप में जाऊंगी, इसलिए पहले सिर्फ फाउंडेशन बना रही हूँ कि क्या रिसीविंग और गिविंग होती And है. I'm just creating foundations for what is receiving and giving. हालेलुया. Hallelujah. When you are giver, not just a taker, it changes your life. और जब आप देने वाले बनते हैं, सिर्फ लेने वाले नहीं, वो आपके जीवन को बदल देता God is a giver. John 3:16 says. है. और यूहन्ना 3:16 कहता है, आप अपनी बाइबल में खोलिए 3:16 और हम सब एक साथ और मेरे साथ पढ़िए. He gave his best. और उसने अपने सबसे उत्तम दिया. 3:16 says. 3:16 कहता है, हाँ. Yes, God loved the world so much that He gave His only Son, Yeah. so that everyone who believes would not perish but have eternal life. उसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए दिया ताकि हर एक जन बचाया जाए. इतना प्यार किया उसने मुझसे. and he loved me so much that he gave his only begotten son so that everybody is So saved. he is not just a taker. वो सिर्फ लेने वाला नहीं है. उसने अपने बेस्ट को दिया. He gave his best. John 3:16 ऐसा कहता यूहन्ना है. 3:16 ऐसा कहता है. When you are giver, जब आप देते हो, you are showing God. आप दिखा रहे हो प्रभु को. आप जब दे रहे हो ना, आप अपने नेचर से, अपने कैरेक्टर से पिता का नेचर दिखा रहे हो, क्योंकि पिता ने बेस्ट दिया 3:16 के And अकॉर्डिंग. when you give, you are showing the character and the true nature of the Father because He gave. Giving sets you free from the power of money and greed. और देना आपको लालच के और पैसे के लालच से बचाता है. So जब आप कलीसिया को दे रहे हो, किसी नीडी पर्सन को दे रहे हो, किसी XYZ पर्सन को दे रहे हो, that means आप गॉड को दे रहे हो. And when you're giving to the needy or you're giving to anyone, that means you're giving to God. मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ, कई बार अगर मैं अपने फाइनेंसेस को मैं किसी XYZ बंदे को या किसी चर्च में कहीं सो करती हूँ, मेरा हार्ट श्योर होता है कि मैंने ये किसी के लिए किया है, बट ये मैंने गॉड को दिया है बिकॉज माई गॉड इज गिवर. और मैं भी अपना बेस्ट देना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी बेहतर देना चाहती हूँ. And I want to make sure in my heart that whenever I receive, I want to give my best because my God is a giver. तो कई बार ना मैं बेस्ट इसलिए देती हूँ क्योंकि मैं जब दे रही हूँ ना, मैं गॉड को दे रही हूँ और मैं ये जानती हूँ कि मैं उसके नेचर को दिखा रही हूँ. And whenever I want to give my best because I want to show the true nature of the Father. That is why I want to give. Proverbs 19:22 और नीति वचन उसका 19 और उसका 22. एम्पलीफाइड वर्जन मेरे लिए मैं एम्पलीफाइड वर्जन को आपके सामने पढ़ूंगी. I want to read the amplified version to you. That which is desirable in a man is his loyalty and unfailing love, but it is better to be a poor man than a wealthy liar. और एक आदमी के लिए सबसे खास चीज ये है कि वो लॉयल रहता है और वो विश्वास योग्य रहता है. बेहतर ये होगा कि एक गरीब व्यक्ति हो जो विश्वास योग्य हो, इसकी जगह कि एक झूठा और जिसके पास बहुत पैसा हो. Giving sets you free देना आपको आजाद from रखता है. power of money. आपको पैसे की शक्ति से आजाद रखता है. इंसान में जो चीज अच्छी होती है वह है उसकी वफादारी और सच्चा प्यार, लेकिन एक अमीर झूठे आदमी से गरीब होना बेहतर है. एक अमीर झूठे आदमी से गरीब होना बेहतर है, ऐसा प्रोवर्ब्स 19:22 कहता This है. is what Proverbs 19:22 says. It is नीति better वचन. to be a faithful poor man rather than to be a wealthy liar. तो अगर आप कहीं दे रहे हो ना, मेक श्योर कि आप खुदा के लिए कर रहे हो, गॉड के लिए कर रहे हो, उसके राज्य के लिए कर And रहे whenever you want to give, make sure that you're doing it for God. हो.
ठीक है, जल्दी से मेरे साथ लूका 10 उसका 25 से लेकर 23 तक पूरी चर्च साथ मिलकर इस स्क्रिप्चर को पढ़ेगी और अंडरस्टैंड करेंगे. And quickly take out with me Luke 10 and from 23, 25 to 23, 25 to 23. 25 से 23 तक, 25 से 23 तक, 25 से 33 तक, क्या बोलते हैं उसको? 33. सो सॉरी, मैं हिंदी में थोड़ा सा गिनती नहीं आता. लूक 10 लूका 25 10 उसका 25 से 33. ठीक है, आप लोग ये सारी स्टोरी को जानते हैं, You लेकिन all मैं know the चाहती हूँ story, पढ़िए. but I want you to read this. ठीक है, कोई भी जन. Can someone read from the crowd? Samaritan. Samaritan. Then an expert in the law stood up to test Jesus. He said, "Teacher, what must I do to get eternal life?" Jesus said to him, "What is written in the law? What do you understand from it?" The man answered, "Love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your strength, and all your mind. Also love your neighbor the same as you love yourself." Jesus said, "Your answer is right, but do this and you will have eternal life." But the man wanted to show that the way he was living was right. So he said to Jesus, "But who is my neighbor?" To answer this question, Jesus said, "A man was going down the road from Jerusalem to Jericho. Some robbers 33 तक. To answer this question, Jesus said, "A man was going down the road from Jerusalem to Jericho. Some robbers surrounded him, tore off his clothes, and beat him. Then they left him lying there on the ground, almost dead. It happened that a Jewish priest was going down that road. When he saw the man, he did not stop to help him. He walked away. Next, a Levite came near. He saw the hurt man, but he went around him. He could not stop to help him either. He just walked away. Then a Samaritan man traveled down that road. He came to the place where the hurt man was lying. He saw the man and felt very sorry. ठीक है. देन आगे ऐसा कहता है, गोइंग ओवर टू हिम द समैरिटन soothed his wounds with olive oil and wine and bandaged him. Then he put the man on his own donkey and took him to where he took care of him. The next day he handed the innkeeper 2 silver coins, telling him, "Take care of this man. If his bill runs higher than this, I will pay you the next time I am here." आप सब ये आई होप स्क्रिप्चर पढ़ चुके हैं. I hope you've read this scripture. ठीक है, ये स्टोरी ना बहुत सारी बार हम पढ़ चुके हैं संडे स्कूल में भी. And we've read this story a lot of times in the Sunday school as well. पर यहाँ पर यीशु मसीह सामरी के बारे में पैरेबल क्यों दे रहा है? And why is Jesus giving this parable of the Samaritan? क्योंकि जब उसकी हालत सड़क पे पड़े हुए की तरह थी, सबने उसको मारकर ऐसे पड़ा छोड़ दिया था. And because his situation was that he was on the floor and he was beaten up, तो वहाँ पर ना एक प्रीस्ट भी आया था. there was a priest that came in. पर प्रीस्ट ने ना उसको देख के कुछ इलाज नहीं किया और वो रोड क्रॉस करके चला गया. But the priest ignored that guy and he just went away. पर वहाँ पर एक व्यक्ति आया There was a man that came, और जब वो व्यक्ति आया तो उसके हाल को देखकर उसका हार्ट दया से भर गया. but there was a man who came who was filled with kindness when he saw that man who was wounded. उसने उसको बेहतर ट्रीटमेंट दिया. He gave him a better treatment. उसको जख्म पे दवाई लगाई, He put ointment on his उसको wounds, बैंडेज किया. bandaged him, ऑल्सो उसको अपने गधे पे बिठा के लेकर गया and he took him by taking him on his shoulders. और उसने इतना तक बोल दिया उसको कि इससे ज्यादा अगर इसका खर्चा आता है तो मैं इसका पूरा चुकाने के लिए तैयार हूँ. And he went on to this extent that he said that if there is more things needed for him, more money needed for his cure, I'm ready to give. उसने अपना बेहतर देने के लिए, क्योंकि प्रीस्ट छोड़ के चला गया, बट ये आदमी क्योंकि कंपैशन से भर गया, यीशु के प्यार से भर गया, उसने कहा मुझे तो देना है. And because this man was filled with the compassion of Jesus, he said, I will give. ये सिर्फ
पब्लिकली देने वाली बात नहीं है, This is not about giving publicly. ये सिर्फ कलीसिया में देने वाली बात It's नहीं not है। about giving in the church. ये ऐसा है कि आपके अंदर प्रभु का प्यार आपने रिसीव किया है। अब आप कभी किसी को देख रहे हो ना, आप रह नहीं पा रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं इसको कैसे पैसों से या कैसे किसी चीज से हेल्प करूं। दैट शोज अ लव। And ये दिखाता है कि you want to help the needy. You want to see how can you help them, how can you give them best. क्योंकि एक प्रीस्ट तो छोड़ के चला गया, पर एक व्यक्ति ने यीशु का प्यार उसको दिखाया, इतना तक कह दिया कि इसका खर्चा मैं पूरा चुकाऊंगा। And one priest went away, but this guy, he said that I will pay for his bills, medical bills. आपको पता है गिविंग आपको पता नहीं है, लेकिन कितने सारे अनएक्सपेक्टेड डोर्स को खोलती है, आप जान नहीं पा रहे हो। And you might not know, but giving open up unexpected doors that you have not seen. क्योंकि हेवन ना इस चीज को देखता है, दुनिया देखे ना देखे। And heaven sees this despite the people may see it जब or आप not see it. दे रहे हो ना, आपके वचन में लिखा है तुम दो तो एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना चले। आप दे रहे हो ना, आपको लग रहा है इसने तो देखा नहीं, इसने तो देखा नहीं, बट आई एम टेलिंग यू विथ माय एक्सपीरियंस, द फादर गिव यू मोर देन यू आर एक्सपेक्टिंग। And when you give more than you, when you start giving in the secret life, you might feel like nobody has seen me, but पिता आपको जितना आप अपेक्षा करते हो उससे आपको ज्यादा देता है। क्योंकि वो प्यार करता है, इसलिए वो एक्सपेक्ट करता है कि हम लोगों को प्यार दें। And because he loves, he expects that we also give that love to people. हालेलुया। Hallelujah. अभी मेरी आई थिंक 4 डेज पहले पास्टर जोशुआ से बात चल रही थी। And Pastor Muskan was talking to Pastor Joshua 4 days ago. या सो ही वाज शेयरिंग मी कि कैसे मेरे साथ एक अलग से एक्सपीरियंस हुआ इस ट्रिप में। And what happened to him in this trip? A different thing happened to him. So in this mission trip, the thing was, you know, prison में, एक prison में उन लोगों को लेकर जाना था। And in this ministry trip, they took the team into a prison. जेल में लेके गए, prison में लेके गए। Also वहाँ पे ना सारी महिलाएं थी, लेडीज थी। And that was a women's jail. So वहाँ पे बहुत सारे यू नो ड्रग्स वाले लोग थे, अडल्ट्री वाले लोग थे, बहुत सारी महिलाएं थी। वहाँ रूल था कि मेल्स लोग पीछे खड़े रहे, सिर्फ फीमेल्स हैंड ले करेंगी। And there were a lot of drug addicts there, and there was the command that males should stay behind, only the females will lay hands. So पास्टर जोशुआ ना पीछे खड़े होके बस सुन रहे हैं, ठीक है। And Pastor Joshua was standing by and was listening. आउट ऑफ नोवेयर प्रोफेसी देते वक्त Out of nowhere, when he was prophesying, ही वाज जस्ट क्राइंग। वो रोने लगे. उनको भी नहीं पता मैं क्यों रो रहा हूँ। He did not know why he's crying. ही वाज जस्ट क्राइंग एंड गिविंग प्रोफेसी। वो रो रहे थे, वो भविष्यवाणी कर रहे थे. और वो कहते हैं मैंने मुस्कान फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस किया है पिता का कंपैशन वाला हार्ट, कि वो लोग इतने पापी हैं, इतने सिनर हैं, अडल्ट्री में हैं, ऑल्सो ड्रग में पकड़ाए गए हैं, तब भी मेरा दिल उनके लिए कंपैशन से भर गया और मैं रो रो के प्रोफेसी कर रहा हूँ। इतना रो रहा हूँ कि मेरे को ऐसा लग रहा है मैं तो इनको शायद दूसरे नजरिए से देखता है, लेकिन पिता तो तब भी इनसे प्यार करता है। And his heart was filled with compassion when he saw these drug addicts, and he was talking to Pastor Muskan that I was just sobbing and sobbing while I was prophesying. These people were drug addicts, they were criminals, they have killed people. If I would have seen it through my eyes, I would have seen them differently. But seeing through the Father's eyes, despite doing all of these things, the Father still loves them so much. आई एम टेलिंग यू, जब आप सिर्फ रिसीव करते हैं, When you just receive आपका गिविंग वाला ऑटोमेटिकली नेचर बन जाता है, and you automatically give, क्योंकि गिवर को आप पहचान गए हो। and because you've known the giver. हालेलुया। Hallelujah. पता है वो सामरी के बारे में ऐसा क्यों लिखा है? And you know why it is written about the Samaritan क्योंकि woman? उसने ना उसको दिखा दिया कि मैं सिर्फ तुझसे सिर्फ ख्याल रखने जैसा प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपना पैसा भी तुझे देना चाहता हूँ कि ताकि तू ठीक हो सके। And to that Samaritan man displayed his love this way, that to that wounded man he said, I just don't want to care for you, but I want to love you so much so that I want to pay for your medical bills. आप बोलेंगे क्यों देना है? Why to give? And you would ask why to give. Proverbs 3:9-10 पढ़िए। नीति वचन 3 उसका 9 और 10 पढ़िए। जिसको भी मिल गया या हाँ, Proverbs 9
या 3, 9, 10. 9, 10. और हम एक साथ मिलके इसको हिंदी में भी पढ़ेंगे. तैयार है आप लोग हिंदी के लिए? जिनको हिंदी में मिल गया वो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं. अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना. इस प्रकार से तेरे खत्ते भरे और तेरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा. अभी हो सकता है आपके पास खत्ते और रसकुंड नहीं है, It might be that you might not have barns and something, बट आपके बैंक अकाउंट भरे रहेंगे, ऐसा वायदा किया है but परमेश्वर your ने. bank account will be filled. This is what the Lord is telling. पर आयत ऐसा कहती है, The स्क्रिप्चर word सेज, says, Scripture says, ऑनर द गॉड विथ योर वेल्थ अपने पैसे से, अपनी समृद्धि से, संपत्ति से, एंड विद द बेस्ट पार्ट ऑफ एवरीथिंग यू प्रोड्यूस. और जो भी तुम्हें मिलता है उसका सबसे उत्तम दो. हालेलुया. तो आप सोच रहे हैं ना मुझे देना क्यों है, मैं लव तो सिर्फ रिसीव कर रहा हूँ, सफिशिएंट है. आप जब गिविंग के बारे में सोचेंगे ना कि मेरे गिवर ने 3:16 के अकॉर्डिंग इकलौते पुत्र को दे दिया, आपका नेचर ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि मैं अपने आप गिव करने लगूंगी और मैं ब्लेसिंग्स अपने आप अपने अकाउंट में देखूंगी. And you will get this, that I will automatically give what I am receiving. I will see the blessings of it in my bank. बिकॉज वर्ड का प्रॉमिस है कि वो आपके खत्तों को आपके अकाउंट को खाली नहीं रखेगा जब आप अपना बेस्ट उसको दे रहे हैं. And this is the promise of the word that He will never let your account be empty. मलाकी 3:10 ऐसा कहता है Malachi 3:10 कि says, तुम मुझे ऐसा करके परखो and He said, the word says, test me, कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोकों को खोलता हूँ कि that I नहीं. will open up the heavens for you. इतना कुछ इसने कह दिया कि तुम मुझे ऐसे करके परखो तो सही. And He said that give and then test me. अगर मैं बोलूं कि नया नियम क्या बोलता है टाइदिंग के लिए, And I would say, what does the New Testament talk मैं about उस पे tithing? भी जाऊंगी. We will go to there as well. पर अगर मैं उत्पत्ति से आपको बताऊं, If I tell you from the book of Genesis, जेनेसिस 14:18-20 says उत्पत्ति 14:18 से 20 ऐसा कहता है कि अब्राहम ने अपना बेस्ट दिया था जब मोसेस का लॉ भी नहीं आया था, तब उसने टाइद दिया था And it फर्स्ट says टाइम. Abraham gave his best even when there was no law for tithing. जब लॉ नहीं आया था तब उसने फर्स्ट टाइम टाइद दिया था. And when there was no law, that moment he tithed. पर नया नियम क्या कहता है गिविंग के बारे में? But what the New Testament tells about मजेदार आयत है, मैं इस पे जीती हूँ, आप भी And देखिए. it's a सेकंड very कोरिंथियंस beautiful verse. I live with this, you can live with that as well. Let's go to 2 Corinthians. 9, उसका 9, 6-7. उसका 6 और 7. Wow. God loves the cheerful giver. परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है. क्योंकि उसने हर्ष से दिया. और क्योंकि because he gave with joy, जॉन 3:16 कहता है उसने अपना बेस्ट दिया. and John 3 says that he gave his best, और जब हम उससे रिसीव कर रहे हैं, and when we receive from और कमांडमेंट उसका ये है कि पूरे मन, पूरे प्राण और पूरे बुद्धि से उससे प्यार करो. this is the commandment that you love him with all your mind, all your heart and all your strength. ये बहुत बड़ा रेवलेशन है. माइंड, हार्ट, सोल, बहुत बड़ा रेवलेशन है. बट अपने मनी से भी आप, अपने फाइनेंस से भी आप कैसे बेस्ट गिव कर सकते हैं, मैं आपको ये टीच करना I चाहती want हूँ to आज. teach you how can you give your best through your finances. और मैं आपको बताना चाहती हूँ चर्च, अगर आप में से सिर्फ इतनी सारी भीड़ में 2 लोग इस रेवलेशन को लेके गए ना, आई एम टेलिंग यू, आप कभी भी गरीबी को देख ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे बाप का वायदा है. If you take this revelation, you will never see poverty because this is the promise of our Father. मैं आपको ये ना दिमाग में आज लिटरली घुसा देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस पे जीती हूँ और मैंने देखा है. And I want to feed it inside your head because I live through these words and I've seen it. कई बार लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं, इवन मेरे पेरेंट्स मुझे देख के बोलते हैं कि कैसे होता है. And a lot of people say a lot of things, and even Pastor Muskan's parents say, how does this happen? बिकॉज मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं Because they are very good businessmen. और उन्होंने मुझे वैसे ही बहुत अच्छे से रखा है हमेशा से. And they have kept her with a very good care. बहुत पैसा था, कपड़े थे, हर बारी कहीं जाना है, मतलब बिजनेसमैन है ना भाई, सब कुछ है ना. And they have everything because they are businessmen. तो जब
अब यहाँ पे लड़की दे रहे थे तो उनको लग रहा था बिजनेस नहीं है तो चीजें कैसे चलेंगी. And they were thinking, how, if the business is not there, how will things happen? बट मैंने इनको बोला था कि मेरा पैसा देने वाला सप्लायर आपके बिजनेस से भी बड़ा है. And I said to she said to her parents that the supplier of my money is greater than your business. जो मनी आपको सप्लाई हो रहा है गवर्नमेंट से, मेरा सोर्स हेवन से है और वो मेरे लिए पूर्ति Your करेगा. source is from heaven and He will fulfill. और आई एम टेलिंग यू, कई बार लोग शॉक हो जाते हैं कि आप लोगों के खर्चे इतने और होता कैसे है. And people are shocked that you have so many expenses. How does this happen? बहुत सारे लोग आते हैं, ये चीजें तो ऐसे हो रही हैं, ऐसे हो रही है. आई एम टेलिंग यू, हमारे भी खर्चे लग्जरियस हैं, हम भी अच्छे से जीते हैं, अच्छे से खाते हैं, बच्चे को अच्छे से रखते हैं, ब्रांडेड चीजें करते हैं. कैसे होता है मुझे भी नहीं पता, पर वर्ड का प्रॉमिस है कि बेहतर दो, और वो वायदा कर रहा है कि वो प्रोवर्ब्स कहता है 3 के अकॉर्डिंग कि वो आपके खाते को, बैंक अकाउंट को खाली रहने ही नहीं देगा. And according to Proverbs 3, the Bible says that when you give to the Father, He will never let your barns be empty. आई डोंट नो, मैंने ये नोट्स में नहीं लिखा है, लेकिन टेस्टिमनी शेयर That कर. is the testimony that I want to share. तो हम लोग ना पचमढ़ी ट्रिप में गए थे, They went to the Pachmani trip मे बी 6 मंथ पहले और मे बी 3 मंथ पहले. 3 months before. या सो काइंड ऑफ काफी अच्छा वैकेशन टाइम रहा. Had a very good vacation time. तो यू नो हम लोग में भी 4-5 डेज का प्लान लेके चले थे, सो दैट हम लोग वहाँ एक साथ प्रेयर कर सके, टाइम स्पेंड कर सके, They took a planned time for 4-5 days so that they could spend time together. या विद गॉड, विद ईच अदर. परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ. तो लास्ट डे जब पेमेंट करना था अकाउंट में, हम लोग बहुत अच्छे होटल में रुके थे, लिटरली बहुत अच्छा होटल था. It was a very beautiful hotel, and the last day when they had to pay. सो यू नो वी वर टॉकिंग, एक रात पहले हम बात कर रहे थे, And they were talking one night before. तो यू नो वी वर लाइक कल हमें इतना यू नो पता नहीं है बिल कितना आएगा, लेकिन पे करना है. And don't know what the bill is going to be, but they want to pay. सो कहीं से अमाउंट हमारा आना था, हमने उन्हें कॉल किया कि सुबह तक या रात में ना हमको अकाउंट में पैसा भेज देना, And they said like, from the morning we want some money, so send it in the morning. क्योंकि वो पैसा आने वाला था. Because that money was about to come. तो वी वर लाइक इतना अकाउंट में, पर और चाहिए रहेगा. And they were like, we have this much in account, but we need more. बट बाय फेथ ये काउंटर पे गए पेमेंट करने. And by faith we went to the counter to pay. ध्यान से सुनिएगा, अकाउंट की बात चल रही है ना, Listen to this carefully, okay? अकाउंट की बात चल रही है ना. Talking of accounts. पिता को आपके अकाउंट का नंबर भी याद है और अकाउंट को देखता भी है. And God remembers your account number and He sees you. मैं बताती हूँ कैसे. I'll tell you how. तो मॉर्निंग हुई, Morning happened. बिल काउंटर में गए, They went to the bill counter कितना 4-5 दिन का बिल हुआ बताओ. and they asked how much is the bill for 4-5 days. उसने पूरे एक्सपेंसेस निकाल दिए, इतने इतने खर्चे हुए. Got all the expenses. This is the expense. फाइनल बिल बता दिया. They were told the final bill. सो इट्स लाइक मे बी एक्चुअल मुझे याद नहीं है, बट इट वाज समथिंग अराउंड 14,055 कुछ 55 रुपीस. वो 14,055 रुपए के आसपास था. सो इन्होंने ना स्कैन कर लिया. And he scanned it. Pastor Joshua scanned it. बिल बना था एग्जैक्टली 14,055 रुपीस का, Bill was और 14,055. अकाउंट में भी 14,055 रुपीस ही थे. And the account had 14,055 only. तो ही वाज शेयरिंग मी कि मुस्कान, अगर मेरे अकाउंट में 54 भी होता तो क्या होता. And he was sharing that if the account would have 40,054 rupees, that would have been a problem. अगर यू नो आई मीन पिता ना इज्जत रखता है, आई एम टेलिंग यू. And God is the one He lifts your head and He does not, He'll never put you to shame. पेमेंट करने के बाद जो पेमेंट रुका हुआ था वो पेमेंट आ गया, ऐसा नहीं है. वो पेमेंट थोड़े घंटे बाद पैसा आ गया, And that money came back. बट ये ना मेरे लिए टेस्टिमनी बन गई थी And this was a testimony for Pastor. कि मेरे पापा को, मेरे डैडी को, मेरे हेवनली फादर को पता है कितना बिल बनेगा, और मेरे अकाउंट में उसने देख लिया 55, मतलब एग्जैक्टली 55. स्कैन किया, अकाउंट में जीरो हो गया. 12,055 रुपीस, मतलब ना 6 ना 7 ना 4, इट्स लाइक एग्जैक्ट अमाउंट. गॉड नोज योर बैंक अकाउंट आल्सो. And it was the exact amount that was needed because He knows your bank account. मैं सिर्फ अपने बातें नहीं बता रही हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया इसलिए मैं बता रही हूँ. I'm not telling you the things, this normal talk, but I'm telling you testimony. बाइबल में 2000 से ज्यादा स्क्रिप्चर हैं देने के बारे में, गरीबों को देने के बारे में, विधवाओं को देने के बारे में. Bible has more than 2,000 scriptures about giving to people, giving to needy. पर आप बोलेंगे नए नियम में कितना % देना चाहिए? And you would ask in the New Testament how much should we give? 10% देना चाहिए, We give 10%, 20% देना चाहिए. 20%. पुराना नियम में जरूर लिखा है टाइदिंग के बारे में, दशवांश दिया अब्राहम ने. And in the Old Testament is written about tithing, give your 10%. बट न्यू टेस्टमेंट में मेरे को ये स्क्रिप्चर बहुत पसंद है. I like this verse in the New Testament. 2 Corinthians 9, 6, 7 ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं. 2 Corinthians 9,
उसका 6 और 7 you read it. God loves the cheerful giver. और परमेश्वर हर्ष से देने वालों को पसंद है. हर्ष से देने वालों को 10%, 20%, 40% मैटर नहीं करता है. And the one who give with joy, it doesn't matter how much percentage they give. It's not like हाँ 10% देना है मुझे. It's not like you guys only give 10%. आप हर्ष से देंगे क्योंकि आप हर्ष से देखना चाहते हैं और आपने हर्ष से रिसीव किया है And you उससे. will give with joy because you want to see coming back that money with joy. हालेलुया. Hallelujah. You will have more than enough. और आपके पास जरूरत से ज्यादा क्योंकि होगा. मैंने वो अनुभव किया है. Because she has experienced it. पता नहीं ये बात बोलूं कि नहीं बोलूं, बट आई थिंक रहने देती हूँ यार. इट इज टेस्टिमनी, बट आई एक थिंक गवाही है. या अभी मुझे नहीं लग रहा है. एनीवेज, सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई बारी ना हमको बेहतर देना है क्योंकि हमने बेहतर रिसीव किया है. इट्स ऑल अबाउट टू साइड लव. और ये दो तरफा प्रेम है. और जो what we have received, if we have received better, we have to give better. हालेलुया. सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं लव एनकाउंटर्स को रिसीव कर ली पिछले संडे, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था, यू नो पास्टर मुस्कान आपने बहुत अच्छा प्रीच किया था, बहुत कुछ खुल गया. भाई आपने खुल गया, आपने रिसीव कर लिया. बारी है कि आप कमांडमेंट को, आज्ञा को पूरा करें. उसने कहा पूरे मन, पूरी शक्ति, पूरे प्राण और पूरी बुद्धि से उसको लव करना है, उसको प्यार करना है. आप अपने पैसों से, फाइनेंस से कैसे प्यार करना चाहते हैं, आपको चैलेंज करना चाहते हैं. And last week we learned about receiving love, but in this week we have to learn to love Him with all our mind, with all our heart, and with all our strength, and how to love Him with money. लूका 6 का 38 पढ़िए. 6:38. 6:38. Let's read Luke 6:38. 38. 6 का 38. You reap what you sow. Yeah. हालेलुया. दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा, और जिस नाप से आप नापते हो ना उसी नाप से आपको भी नाप के मिलेगा. सो मेक श्योर. मैंने देखा है कि मैंने जब अपने दिल को फाड़ के ना, दर्द हो रहा है ना, दे दिया ना, तो मैंने देखा है मेरे बाप ने भी मुझे जितना सोचा नहीं था उससे बढ़ के दे दिया. And when I have opened up my heart and I have given, I have seen that my Father has given me more. तो किसी ने ना हमसे कहा कि आप इतनी एक कार बदल के कैसे चला देते हो, ये कौन सा ग्रेस है. And somebody said to us, how can you keep changing cars? What is this kind of grace? तो हम लोग ऐसे एक दिन, क्योंकि ना हम लिटरली प्रभु के अनुग्रह से बस बदलती जा रही, कार आती जा रही. तो कई बार किसी ने पूछा हमसे कि ये फेवर मुझे भी रिसीव करना है. And somebody asked us that I want to receive this favor as well. क्योंकि लोग देख के ऐसे होते हैं कि हर दिन कार बदलती है इनकी. People are like, every day the car changes. हर मंथ नई कार. Every month new car. तो जब हम पचमढ़ी से आए, And they came back from Pachmadi. प्रभु ने बोला कि जो तुम्हारे पास कार है तुम लोग सो कर दो. God said, what car you have, you sow it. किंगडम के लिए प्रभु ने कहाँ का बताया था वो रिवील नहीं करूंगी, सो कर दो. And said, for the kingdom, sow this car. बहुत पीस था चीजों के लिए They had peace for a lot of things. कि ठीक है करना है. हम दोनों को बहुत पीस था. And they had peace for all of these things. बट कई बार ऐसा लग रहा था कि ठंड इतनी पड़ रही है, अलाइजा के लिए चर्च जाना, घर से इतना 2 सर्विस के लिए, बच्चे को स्ट्रगल ना हो. And there was a lot of cold, and they were wanting that Elijah should not struggle in this cold. बट प्रेयर में दोनों को पीस था. They had peace in prayer. जब सुना तो ऐसा लगा कि बस कर देना है. And they heard, they just felt like doing it. मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं बता रही हूँ, हम लोग अपनी बड़ाई के लिए नहीं बता रहे हैं. Not telling it because you are praising us. We're not telling बट this. मैं बता रही हूँ कि आप जब देंगे ना आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से रिसीव करना है. And I'm telling you, when you give, you will never not know from where you receive. थोड़ा फेथ स्ट्रेचिंग वाला टाइम था वो, It was a time of stretching of faith. कि कैसे होगा बिना कार के. Because how will it happen without car? क्योंकि हम लोग हर बार हर जगह कार के बिना नहीं जाते, सब टाइम कार चाहिए बच्चे के Every साथ. time they need car for the kid. अलाइजा कई बार बुलेट में बैठता है ना तो पापा को और मम्मा को धक्का देता है, टाइट है. उसको ऐसा लगता है फंस के क्यों बैठे, टाइट है. When Elijah sits on the bullet, the bike, he would push the parents behind saying it's very tight here. क्योंकि उसने लिटरली हमेशा से कार पे जीना Because सीखा है. he's always lived in a car. तो बहुत मुश्किल था. It was very hard. बट आई एम टेलिंग यू, इनसाइड ना एक पीस था कि बस करना है. And inside they had a peace just to do it. एक हफ्ते बाद After 1 week,
किसी ने बस ऐसे ही बोल दिया कि यार आप लोग कार नहीं है आप लोग के पास। हम लोग ना किसी को नहीं बताते। आई डोंट नो, स्पिरिट में मुझे लगा, मैंने टेस्टिमनी शेयर की और अभी तक किसी को रिवील नहीं किया था। बट देन कहीं हम लोग मीटिंग लेने गए थे, द गाय वाज लाइक हमारी कार खड़ी हुई है, आप इसको 1 मंथ के लिए बस यूज करो। And when they went to a meeting, the guys उन्होंने कहा कि you can use this car for a month. It's just there. हम लोग की खड़ी हुई है, काम निकाले कि आप यूज करो। It is just there standing. You can use this car. 1 मंथ हुआ, For 1 month it happened. 1 मंथ हुआ। हमारे ना ओनर भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग अलग अलग। अभी मुझसे 3 दिन पहले ओनर कॉल करके बोलता है अच्छा ये नहीं है, अच्छा फिजी गए। फिर बोलते हैं कि ये जो बाहर टाटा पंच खड़ी है ये तुम्हारी है, अभी तो दूसरी कार थी दूसरी होगी। मैंने कहा ये भी हमारी है। वो शॉक हो जाते हैं कि इतना तो किराया नहीं देते, इतना किराया देते हैं और हर महीने कार कैसे बदलते रहते And हैं। they are shocked by saying that why do you keep changing cars? Like earlier you had a different car, now there is this Tata Punch. ठीक है, तो वो बंदे ने 1 महीने के लिए कार दिया, हमें भी नहीं पता था कितने दिन के लिए रहेगी वो कार। And that guy gave us the car for 1 month and we didn't know how much for how much. जब वो मंथ आने ही वाला था कार रिटर्न के लिए, And then that time was about to come to return the car. XYZ बंदे ने हमको बोला कि पास्टर जी हम नहीं चाहते कि आप ये कार चलाओ। हम जिस दिन आपको ये देखे थे हमारे हार्ट में प्रभु ने डाला कि हमारी कार, हमने 1 साल पहले नई कार खरीदी है, वो हम लोग चला नहीं पा रहे, जस्ट आप यूज करो, हम आपको ब्लेस करना चाहते हैं, बस चलाओ। And they said like Pastor ji, we don't want you to use this car, but we want to bless you with the car that we have. We are not driving it. We purchased it so you can drive that car. चलाई फिर वो जाने वाली थी। And then it was about to go. 4 दिन के लिए फिर दूसरी कार खड़ी हो गई। 4 days. After 4 days there was a different car. सो 4 दिन बाद जब वो कार जाने वाली थी, 4 days when there was a different car. तो जो बंदे ने हमको कार क्योंकि वापस लेके गया था इंदौर राइड के लिए, 4 दिन बाद वो बंदा वापस 5वें दिन आता है कि मैं कार लेके आऊंगा। तो हर बारी ना हमारे घर के सामने 2 गाड़ियां होती है क्योंकि दूसरे दिन एक जाने वाली होती है और एक खड़ी होगी। तो लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि लोग कार कितनी बदलते हैं, क्योंकि 2 कार खड़ी है, अभी कल चली जाएगी तो एक रहेगी। तो भाई कार पे कार कैसे आ रही है, एक ने पूछा। तो हम आउट ऑफ नोवेयर, ये मुझे स्माइल करके बोलते कि ये मुझसे कहती है कि मुझे भी एक कार रिसीव करने वाला फेवर चाहिए। एंड देन ही वाज लाइक कि अपनी कार बोना भी होता है तब ये फेवर मिलता है। And then we would see that one car would go because of the need, and the other car would come, and the cars would keep coming and going, coming and going. And then there was someone who was asking this, I want this grace. They were asking Pastor Joshua, Pastor Muskan, I want this grace of having different cars. And then Pastor Joshua said, if you want to receive that grace, you have to give the car as well. I'm telling you when I'm sharing this story, और मैं आपको बता रही हूँ जब मैं ये कहानी को बांट रही हूँ, मैं प्रभु से पूछ रही थी कि मुझे बताना है कि नहीं बताना है। and I was asking God that should I tell him or not. बट मैं बताना चाह रही हूँ। बहुत खुशी लगती है सब बताने में, It feels happy to tell you. बट आप जब बेस्ट देते हो ना, When you give your best, आपका बाप आपको कलेजा फाड़ कर बेस्ट देता है। and your Father opens up the heavens and gives you the best. इस मंथ में कभी नहीं देखा कि हम लोग बिना कार के हैं। And we've never seen that in this month we were without the car. सब लोग अलग अलग कार देख रहे हैं, Everybody seeing different cars. बट मैं इसमें पिता की भलाई और गुडनेस और लव को देख रही In हूँ। this we are seeing the goodness and the love of the Father. उसको इतना पता है कि 4 दिन के बाद ये नहीं रहेगी तो 5वें दिन ये चाहिए। And he knows this month that after 4 days this car will not be there, so they need a different car. उसको इतना पता है कि अकाउंट में इतना पैसा है तो इतना ही बिल बनाना है। And he knew that their account has this much of this money, so they will make the bill according to that. 1 John 3:18 ऐसा कहता है, Yohanna 3:18 ऐसा कहता है. Dear children, let's not merely say that we love each other, let us show the truth by our action. और हम ऐसे ना बोले सिर्फ कि हम प्यार करते, पर हम अपने कामों के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट करें. आप सिर्फ नहीं बोले कि I love you, और don't say to each other just I love you. आप जो रिलेशनशिप में आप जानते हैं रिसीविंग और गिविंग दोनों जरूरी है। And in your relationship, receiving and giving is very important. तो क्यों आप पिता के साथ कई बार ऐसा करते हैं कि जब आपको देने की बारी आए तो आप बस छोटा सा निकालना चाहते हैं। And why do you want to give like small to the Father? मैं आज प्रोमिसेस याद दिलाना चाहती हूँ जो उसने बाइबल में And I कहा। want to remind you of the promises that are there in the Bible. कलीसिया अगर आप इस चीज को सीख गए ना, Church, if you learn this, आज आप अंकुर नरोला चर्च और अंकित भैया अपोस्टल अंकित का चर्च सब चर्चेस देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं इतने बड़े बड़े कैसे हैं, इतना पैसा कैसा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बन गई। इट्स ऑल अबाउट गिविंग गिविंग गिविंग। जितना बेस्ट गिविंग होगा चर्च बढ़ेगा, लोग बढ़ेंगे, ऑल्सो आप स्पिरिचुअली बढ़ोगे क्योंकि आपका फेथ चैलेंज होगा। and when you give,
how do they grow? It's through giving. When you keep giving, you will grow. The church will grow. And how do you grow spiritually? When you give, your faith is challenged. हालेलुया, Hallelujah. इट्स वेरी डीप. ये बहुत गहरा है. अगर जो लोग ले लिया ना, आप लोग, मैं बता रही हूँ, अगले महीने मुझसे मिलोगे और टेस्टिमनीज पे And टेस्टिमनीज. the next one you will give testimonies on testimonies. कई बार आपको लगेगा इतना से ही पैसा है, कैसे करूँ? And you might think I have only this much amount of money. How will I do it? आई एम टेलिंग यू, आपसे पिछले कह रहा हूँ. हफ्ते Last week, मेरे को फाइनेंस, मैंने अफ्रीकन फेलोशिप में बताया था कि कई बार कितना चैलेंजिंग होता है घर का सब देखना, चीजें करना, ऑल्सो फाइनेंस मैनेज करना, कि अब ये नहीं है तो चीजें सब करना, यू नो, फाइनेंस मैनेज करना. बट उस पीरियड में भी कई बार मेरा हार्ट वाज लाइक, मेरे को ना इसमें से भी नहीं है ना, बेस्ट देना है. एंड आउट ऑफ नोवेयर दूसरे दिन पता नहीं कहाँ से पॉकेट में से एक्स्ट्रा अमाउंट निकल के आ गया. आई वाज शॉक कि यही पहनना था आज मुझे और इसमें कब पैसा रखा था मैंने. and it sometimes it becomes very difficult to manage everything. But I was like, Father, I want to give you the best. And sometimes it might happen that when I change my clothes, I would find money in my pockets. And she's surprised by how things are. आप बता रही हूँ, जब आप बेहतर देंगे ना, आप रिसीव करेंगे जितना आपने सोचा भी नहीं. When you give in a better way, you will receive what you've not thought about. 1 यूहन्ना 3:18 ऐसा कहता है 1:3:18 says, कि सिर्फ आप प्यार कर, ये मत बताओ कि दैट वी लव ईच अदर, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, don't just say that you love each other, बट अपने एक्शन में आप उसको दिखाओ. but through your actions show it. और कलीसिया अगर आपका एक्शन गिविंग वाला नहीं है ना, And church, if you don't have an action of giving, आप कुछ मिस कर रहे हो. you are missing out on something. क्योंकि उसने बोला है पूरे मन, पूरे प्राण और पूरे बुद्धि से उसको प्यार करना है. Because he said that love the Lord with all your heart, with all your mind, and all your आपको strength. पता नहीं है गिविंग कितना कुछ खोलती है चर्च. And you don't know how much giving मैंने opens. देखा है इसलिए मैं बोल रही I हूँ. have seen it, and that is why I'm telling you. आई एम टेलिंग यू, जब कार की ये सारी चीजों को मैं देखती हूँ ना, मैं लिटरली, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि पापा को पता है कि कैसे चीजें होनी है. आई एम टेलिंग यू, मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बताया कि घर में सारी चीजें होती जा रही थी, अपने आप मशीन आ गई, अपने आप फ्रिज आ गई, कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, आता जा रहा है. बिकॉज फादर नोज योर हार्ट. वो आपके हार्ट की हार्ट की इच्छाओं से ज्यादा आपको चीजों को देगा. And we didn't know from where our fridge and all these things would come, but the Father provided. And I want to tell you, पिता आपके दिल को जानता है. He knows from where to provide for you. बेहतर गिविंग बेहतर डोर्स को खोलेगी. And better giving opens up better doors. स्पिरिचुअल लाइफ में आप बड़ा कुछ देखेंगे. You're gonna see something big in your spirit. मैं आप चर्च आपको ये प्रॉफिटिक वर्ड देना चाहती हूँ Church, I want to give this prophetic word कि to you. आपके पास मोर देन इनफ होगा. That you will have more than enough. जितना आपने सोचा नहीं है, वचन में ऐसा लिखा है कि परख के देखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोकों को खोलता हूँ कि नहीं. And you might not have thought, but the word says, test me and I will open up the heavens for you. ऑल्सो लिखा है कि वो हिला कर और दबा के देने वालों And में he से. will give you with a good measure. सो मैं आपको चैलेंज करना चाहती हूँ I want to challenge you today. कि आज कुछ भी अगर प्रभु आपको हाईलाइट कर रहा है, Whatever God is highlighting you. मैं नहीं बोल रही हूँ कि जस्ट यू नो मुझे दीजिए, हमें दीजिए, चर्च को दीजिए, बट वॉट एवर गॉड इज टेलिंग यू टुडे, And जो भी आज प्रभु आपसे कहता है, it's not like give to the church or give to us, but whatever God is highlighting you today, जस्ट ओबे करें. सिर्फ obey करें. क्योंकि पहला यूहन्ना अभी हमने पढ़ा, You've read First John, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा है कि सिर्फ प्रेम ऐसा ना बताए कि मैं एक दूसरे से प्यार करता हूँ, and it is written that it does not say that love shows that I love you. बट एक्शन में दिखाएं, It is displayed through action. अपने कार्यों में दिखाएं. Display your love through action. तो मैं बोलना चाहती हूँ आपको कि अगर आप पिता से सिर्फ रिसीव करें, पिछले हफ्ते हमने बहुत सारे लव एनकाउंटर्स को In the रिसीव, last week we had a lot of love encounters. बट आई एम टेलिंग यू, But today I'm telling you, लव इज ऑल अबाउट टू साइडेड लव. और प्रेम हमसे दो तरफा. और मैं आपको फिर से रिवाइज कराना चाहती हूँ कि ये एक रिवर है जहाँ पर फ्लो होना जरूरी है, नहीं तो वो स्टिल वाटर ना बदबू मारने लगेगा, वो यूजफुल नहीं होगा. And there's a river in which things have to flow. If it becomes stagnant, it will get contaminated. प्यार में भी ना फ्लो होना जरूरी है, रिसीविंग और गिविंग का. And love requires receiving and giving. नहीं तो ना स्टिल वाटर या फिर बस रिसीव करके ना आप अंदर से खाली महसूस करोगे कि मुझे देना भी है. And you will receive, when you just keep receiving, you will start feeling empty from the inside because you have to give. मैं आज आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहती हूँ I want सोच to give you the कि आज आप कैसा रिवर बनना चाहते हैं, कि वो डेड सी बनना चाहते हैं, कि किस तरह आपको रहना है, फ्लो में जीना है प्रभु के साथ में, कि लिटरली बस स्थिर पानी की तरह रहना है. And I want to give you this challenge. Do you want to live in a flow or do you want to stay stagnant?
क्योंकि अगर एक रिवर में फ्लो है ना, वो बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। आई एम टेलिंग यू, आप स्पिरिचुअली भी गिविंग के द्वारा बढ़ते And if जाएंगे। that river has a flow, it will keep increasing, and the spiritual realm you're going to But- keep increasing. पर अगर डेड सी होगा, उसमें सिर्फ आपको सिर्फ वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, इतने पे ही आप निर्भर होंगे, अपने फेथ को आप चैलेंज नहीं कर पाओगे। And you will not be able to challenge your faith if you stay stagnant. सो चर्च, ये आपके लिए एक इनविटेशन है। So this is an invitation for you. आज पिता से पूछिए Ask the Father. कि पिता आज आपको क्या करने बोल रहा है, क्योंकि प्रेम दो तरफा है, And what is the Father asking you to do? Because love is two-sided. सिर्फ एक तरफा नहीं है, दो तरफा It है, is not one-sided. It is और two-sided. इसमें फ्लो होना जरूरी है। It is important to flow into it. आई एम टेलिंग यू, जब मैं आपको कार वाली टेस्टिमनी बता रही थी, And I am telling you, when I was telling you the testimony of the car, आई वाज हियरिंग दिस वर्ड और मैं एक वचन को सुन रही थी, कि चर्च में भी ऐसे बहुत सारे बड़े गिवर होने जा रहे हैं, and church is going to have a lot of big givers. और आप जानोगे भी नहीं कि आपके पास लिटरली कहाँ से सप्लाई हो रहा You है। will not know from where the supply will come to you. बिकॉज हेवन इज वेरी एक्साइटेड क्योंकि स्वर्ग बहुत उत्सुक है कि आप उसके वॉइस को कैसे ओबे कर रहे हो, कि how do you obey His voice? क्योंकि प्यार दो तरफा है। Because love is two-sided. आई एम टेलिंग यू, आज आप पिता से पूछिए, और वो जो आपको हाईलाइट करता है आप जस्ट कर दीजिए। Ask the Father, and whatever He highlights you, just do it. मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि हो ही नहीं सकता कि आपको पिता ऐसे ही छोड़ दे, क्योंकि वचन में उसने कहा है, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा And जाएगा। I want to tell you, it will never happen that you will not receive it back, because the word says, what with the measure that you give, with the same measure you will be given back. जस्ट प्रे एंड आस्क गॉड आज वो आपको क्या प्रार्थना करना करें है। और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर जस्ट आस्क गॉड, उसके साथ पार्टनर करे, पवित्र आत्मा के साथ पार्टनर करे, और पूछे पवित्र आत्मा से कि आज वो क्या कर रहा है, क्या आपको हाईलाइट कर रहा है। और मैं जानती हूँ कि चर्च, अगर आप में से सिर्फ 2 लोग ने इस रेवलेशन को पकड़ लिया, if 2 people are here who are receiving this revelation, I am telling you, breakthrough is very near. एक ब्रेक थ्रू है यहाँ पर जो खुल रहा है। आपका ब्रेक थ्रू आपके पास है, क्योंकि एक्ट कर रहे हैं आप फेथ से। And because you're acting by faith, your breakthrough is very near. It's not about just receiving. आप अपने एक्ट को दिखा रहे हैं कि डैडी, I just want to obey you. And you're showing the sign that, Father, I want to obey you. Just close your eyes और उसके साथ इंटीमेट हो जाए। और अपने आप को बंद करें and be intimate with Him. उससे पूछे आज वो क्या बता रहा है। Ask Him, what are you doing?